हाय यूजर, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद खटक। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल ऑफ हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखते हैं। अपने लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को देख लिया था। उससे पहले के लेक्चर के अंदर हमने सिंगल इनहेरिटेंस को देख लिया था। आज के एग्जांपल्स के अंदर हम हायरार्किकल एग्जांपल्स को देखते हैं कि हाउ हायरार्किकल इनहेरिटेंस विल बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग C++। If we look at the syntax of hierarchical inheritance, this is basically a class, parent class, and child 1 is derived from the parent class. Similarly, child 2 is derived from the parent class, and child 3 is derived from the parent class. So how we can define hierarchical inheritance? Hierarchical inheritance, there is a single base class and multiple classes are derived from this base class. So this is a simple explanation or simple definition of the hierarchical inheritance, that these are the three derived classes: child 1, child 2, child 3, and these three derived class are derived from a single base class, parent, and parent. So what does it mean? That child 1 can access the parent class characteristics, child 2 can access the parent class characteristics, and child 3 can access the parent class characteristics. If we look at the diagrams of the hierarchical inheritance, look at this. Class B, class C, and class D are derived from a single base class, that is class 1. So in this case, class B, C, and D are derived from common base class A. Okay. So now if you look at the examples, this is the single base class. Here if you look at this, two data members, that is protected this time. I declare two data members protectedly, A and B, and there is one single method. एक ही single method है इस class के अंदर, get data users से मैं दो values ले रहा हूँ keyboard के through. So the value of A and B will be entered and stored inside A and B. And then if you look at this, child 1 is derived from the parent class. There is no data member in this class, but only one member functions only, that is get product. Here simply I am going to multiply it, the data members A and B. अगर आप लोग यहाँ पे देख लें, अब इस child 1 क्लास के अंदर कोई डेटा मेंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं A एंड B डेटा मेंबर्स को यूज कर रहा हूँ। वो डेटा मेंबर्स को मैं क्यों यूज कर रहा हूँ? वो डेटा मेंबर बेसिकली हैं पेरेंट क्लास के, लेकिन चूंकि चाइल्ड 1 क्लास पब्लिकली पेरेंट क्लास से डिराइव्ड है, तो मैं बेस क्लास के या पेरेंट क्लास के डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दोनों में एक्सेस यहाँ पे कर सकता हूँ। सो इसी वजह से यहाँ पे कंपाइलर मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। ओके, सिमिलरली नाउ इफ यू लुक एट दिस, चाइल्ड 2 क्लास इज अगेन पब्लिकली डिराइव्ड फ्रॉम द पेरेंट क्लास. In child 2 class again there is no data members, only a single member function, that is getSum. And this functions we just going to add the two data members. Again child 2 के अंदर भी अगर आप लोग देख लें, there is no declaration for the data members, but I am here going to access or use the data members A and B of the base class parent. Why? Because here again child 2 is derived from the parent class publicly. So what does it mean? That I can access the parent class characteristics inside the child 2 class. So if you look at the main function, in main functions I have created data object of child 1 and child 2. So अब child 1 के object 1 object 2 के साथ मैं क्या कर सकता हूँ? बेस क्लास के मेंबर फंक्शन भी एक्सेस कर सकता हूँ और डिराइव्ड की भी एक्सेस कर सकता हूँ. सो अगर ये हम देख लें तो ये मैं ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू गेट डेटा फंक्शन जो पेरेंट क्लास का मेथड है वो एक्सेस कर लेता हूँ, और गेट सम जो डिराइव्ड क्लास का है वो भी मैं इसके थ्रू एक्सेस कर लेता हूँ. सिमिलरली जो ऑब्जेक्ट 1 है मेरे पास, ऑब्जेक्ट 1 का अगर आप लोग देखें तो ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू भी मैं गेट डेटा फंक्शन और गेट प्रोडक्ट जो इसका अपना मेथड है वो भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ. सो व्हाट डज इट मीन? एक सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू हमने ये देख लिया. सॉरी, अगर मैं इसके आउटपुट को देख लूँ, सो ये इसका मेरे पास सिंपली आउटपुट है, जिसके अंदर मेरे पास एक बेस क्लास है और इस दफ़ा मैंने इस एक बेस क्लास से दो डिराइव्ड क्लासेस की हैं. एंटर वैल्यू फॉर ए एंड बी 2 and 3. The product is 6. Enter value for A and B 5 and 6. 56 and then 50. So the sum is 106. So दोनों क्लासेस दोनों के अंदर मैंने क्या किया? एक मैंने मेरे पास बेस क्लास था, उस बेस क्लास से मैंने डिराइव्ड किया चाइल्ड 1 क्लास को और चाइल्ड 2 क्लास को, और फिर मैंने मेन फंक्शंस के अंदर चाइल्ड 1 और चाइल्ड 2 के ऑब्जेक्ट बना लिए, जिसके थ्रू मैं बेस क्लास के फंक्शन और डिराइव्ड क्लास के फंक्शन दोनों के एक्सेस कर सकता हूँ. अपने नेक्स्ट एग्जांपल्स के अंदर हम
मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखेंगे, उसके अंदर हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि अगर हम फंक्शन को ओवरराइड कर दें, मींस बेस क्लास के अंदर जो फंक्शन है उसी नाम का हम डिराइव्ड क्लास के अंदर फंक्शन डिक्लेयर कर दें या डिफाइन कर दें, देन अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं मेन फंक्शन से, तो देन विच वर्जन ऑफ द फंक्शन विल बी एक्सेस्ड. सो वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.